Hello students, myself Suman Shekhawat and I am teaching economics in Grammar School Himmatnagar. Student, this is our fourth part for chapter 1 Graphs and Economics. So let's start our today's video. Topics to be discussed in this video. First one is computer technology, and then after internet technology, and then after data CDs. So let's start. First, we should know the use of technology in the study of economics, where we use technology in economics in our daily routine life. So, we living in an age of digital technology and we use this technology in our daily lives. That students, हम अभी कैसे युग में जी रहे हैं जहाँ पे डिजिटल टेक्नोलॉजी का मैक्सिमम यूज़ हो रहा है एंड राइट नाउ ये सेंटेंस हमारे लिए सबसे ज़्यादा सुटेबल रहता है एंड वी यूज़ दिस टेक्नोलॉजी इन आवर डेली लाइफ. रोज़ाना हम इस टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग. नाउ वी यूज़ technology in different purpose like chat with friends and relatives, to watch movies, to listen music, navigate our ways, online shopping, online payment and many more purposes. Students, you know very clearly these points that where we use technology. Now this technology is also used for education. So right now I'm providing you this video with the help of technology. So this sentence is most suitable for our life. Now students, economics is an art and science which evolves every day as the behavior of human beings, society and state change with time. So we need to update ourselves with the help of technology. जैसे कि इसमें बताया गया है, economics is an art, that how we handle our expenses, this is an art now. So that's why economics is an art and science, because we follow very principles, rule and regulation economics. So that's why we can say that economics is also an science. So it involves everyday behavior of humans, like we are changing in our behavior, and also society changes their attitude and state also. So according to the technology we also need to update ourselves. हमें भी अपने आप को टाइम के साथ में अपडेट होना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा. Like now every student are teaching or learning with the help of technology. So if you don't know about the use of technology in proper way, so you don't able to understand anything in clear way. So students, you first must need to update yourself according to the time. Now next topic is students, computer technology. First is presentation. As I am presenting you this topic with the help of presentation. So this is a very good example for you for the presentation. First of all, complicated economic information or data and difficult theories of economics can made easy by expressing in a PowerPoint presentation. That means इकोनॉमिक्स हैंडल विद कॉम्प्लिकेटेड डेटा. हम बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड डेटास के साथ में इकोनॉमिक्स में काम करते हैं और ऐसी डिफरेंट थ्योरीज इकोनॉमिक्स में है जो कि ईजिली समझ में नहीं आती है. सो विद द हेल्प ऑफ पावर पॉइंट, अगर मैं प्रेजेंटेशन की बात करूं उसकी हेल्प से, जैसे कि अभी मैं आप लोगों को समझा रही हूँ, यू आर ईजिली अंडरस्टैंड और एबल दैट आप लोग सब कुछ अच्छे से सीख सके. नाउ इसके लिए एग्जाम्पल है, द एंटायर टॉपिक ऑफ बजट can be highlighted in 3 slides only. Like in first slide just the meaning of the budget and the types of budget, and after the second slide you make the budget of central government, and then last slide you make the state government budget, and you are easily understand this whole topic in only 3 slides. Now the second one is Excel worksheets. You all are aware with Excel worksheet in your previous classes, that you deal with Excel worksheet very excellently. Now economics deal with a lot of data, as you know that
कि हम लोग बहुत सारे डेटास के साथ में डील करते हैं इकोनॉमिक्स में, एंड रिसर्चर्स सम टाइम डील विद द डेटा इन थाउजेंड्स ऑफ ऑब्जर्वेशन। जो हमारे रिसर्चर्स होते हैं डिफरेंट टाइप्स की थ्योरीज को डेवलप करते हैं, वो थाउजेंड्स ऑफ ऑब्जर्वेशन पे काम करते हैं, अलग अलग डेटास पे ऑब्जर्वेशन करते हैं और उनके कॉन्क्लूशन बहुत सारे निकलते हैं। तो जब हमारे पास डेटा बहुत ज़्यादा होगा, वो भी न्यूमेरिकल फॉर्म में, तब हमें क्या करना होगा, सच डेटा मस्ट बी एंटर इन एन एक्सेल शीट कैन प्रोसेस द डेटा फॉर एनी फॉर्मूला एट ओनली वन क्लिक। दैट मीन्स आप जो ये बहुत सारा डेटा होता है, कॉम्प्लिकेटेड डेटा होता है, मैक्सिमम डेटा होता है, अगर आप उसको एक्सेल में एंटर कर देते हो देन यू कैन ईजिली प्रोसेस, आप उसके ऊपर बहुत सारे काम कर सकते हो। सिर्फ एक क्लिक में आपको बहुत सारी चीज़ें उसमें अवेलेबल हो सकती है। अदरवाइज़ क्या करना पड़ता है, हमें बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है इफ़ वी आर डूइंग एनीथिंग मैन्युअली। अगर हम मैन्युअली कोई काम करेंगे तो हमें बहुत सारा टाइम कंज्यूम करना पड़ेगा, बहुत सारा मेहनत करनी पड़ेगी। एंड नाउ एग्जाम्पल इसके लिए है, इट कैन गिव सम टोटल, लाइक अगर आपको बहुत सारा डेटा है, जस्ट वन क्लिक में आपको कंप्लीट डेटा का सम टोटल मिल जाएगा, एवरेज, कोरिलेशन एंड मच मोर मेनी थिंग्स। सो स्टूडेंट्स, नाउ द नेक्स्ट वन इज diagrams and graphs. Diagrams and graph you already learn in previous videos that how we make diagrams and graphs, but we can easily make diagrams and graphs with the help of technology, especially computer technology. Here you see the two pictures which show one the pie diagram and the second one is the bar diagram. So let's understand. There are several programs in a computer which help us to draw diagrams and graphs which we frequently use in economics. This is the pre-concept, like pre-designed themes which we can use very easily in a short time period. So I can say that diagrams and graph we can draw within a time, within a limited time and without wasting any too much time. Now the fourth one is storage tools. We use plenty of study material in economics and we can preserve all such material in a computer. That means हम लोग जब इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो हमारे पास में बहुत सारा स्टडी मटेरियल होता है, हमें बहुत कुछ पढ़ना होता है, बहुत कुछ कॉन्क्लूशन पे जाना पड़ता है और हमें क्या करना पड़ता है, वो सभी स्टडी मटेरियल्स को कंप्यूटर में प्रिजर्व करके रखना पड़ता है। अगर हम हार्ड कॉपी में प्रिजर्व करके रखते हैं तो उनका डिस्ट्रॉय होने का चांसेस रहता है। दैट्स वाई अभी आप लोगों के लिए क्या है, एक बहुत ही स्मार्ट ऑप्शन अवेलेबल है दैट यू कैन प्रिजर्व योर ऑल मटीरियल इन अ कंप्यूटर. So beside it can be carried anywhere by transferring it in a hard disk or a pen drive. That means students आप उसको easily transfer कर सकते हो किसी भी hard disk में या pen drive में, ताकि आप उसको carry कर सको. If you go anywhere you can access your study material. Okay. Now example, by transferring it in email, Dropbox, Google Drive, DigiLocker and etc. I think you all of you must aware about these. What is the email, Dropbox, Google Drive, DigiLocker? I think I doesn't need to much more explain about this. So we can access this material and read it any part of the world. हम उनको कहीं पे भी पूरे वर्ल्ड के किसी भी पार्ट में, संसार के किसी भी जगह में हम उनको ईजिली एक्सेस कर सकते हैं। जब चाहे तब हमें वो हमारा मटेरियल मिल सकता है। हम उसको हार्ड कॉपी में अपने साथ लेके जाने की ज़रूरत नहीं है, हमें उसके लॉस्ट होने का डर नहीं रहेगा। नाउ द लास्ट वन इज़ द फिफ्थ वन, दैट अदर टूल्स इन कंप्यूटर टेक्नोलॉजी. Statistical programs like SPSS, Shajam, eViews, SAS, etc. are developed to do almost all type of data processing for lakhs of observation in minutes by entering the right formula. Like it's a pre-developed programs which we can easily use and we do lot of things on that particular programs. जैसे कि ये प्रोग्राम्स प्री डिफाइंड होते हैं, पहले से बने हुए होते हैं, इनमें हमें सिर्फ और सिर्फ अपने डेटा एंटर करने होते हैं और उससे हमें एक सिंगल क्लिक में और कुछ ही समय में हमें हमारा रिजल्ट
मिल जाता है, जो कि शायद ऐसे अगर हमें उनको कैलकुलेट करना हो तो बहुत ज़्यादा टाइम लगे। इसका एक एग्जांपल है, बैंकिंग जो सेक्टर है वो अभी अपने ईएमआईज एंड जो भी उनका सम टोटल कितना होगा, उस पर इंटरेस्ट कितना लगेगा, ये सारे के लिए उन्होंने एक इनबिल्ट प्रोग्राम डेवलप कर रखा है। बस उनको पर्टिकुलर जो अमाउंट है, जो टाइम पीरियड है, वो एंटर करना होता है और उनको सभी चीज़ें विद इन वन क्लिक, ये कह सकती हूँ कि सिर्फ एक क्लिक पे अवेलेबल हो जाती है। नाउ स्टूडेंट्स, हेयर वन नोट इज ऑल्सो देयर। Nowadays, all these functions of a computer are also available on smartphone and tablets, as you know very well. So, now students, the next one is cautions in using computer technology. That means हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए जब हम कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं। कंप्यूटर टेक्नोलॉजी इज इन aid in studying and it is not a study material by itself. ये सिर्फ एक साधन मात्र है स्टडी करने का, ये खुद से स्टडी मटेरियल नहीं है। दैट मीन्स ये हमें स्टडी नहीं करवाता है, इसकी हेल्प से हम स्टडी करते हैं, ये है। ओके, सो दिस इज़ नॉट अ स्टडी मटेरियल बाय इटसेल्फ। ये हमारे लिए स्टडी मटेरियल का काम नहीं करता है, ये हमारे लिए हेल्पर का काम करता है, एड का काम करता है। सो इट हेल्प टू मेक द प्रोसेस ऑफ स्टडी easier and faster, but it does not replace the process of studying. That means ये हमारा जो लर्निंग का प्रोसेस है, हम जो सीखते हैं, स्टडी करते हैं, उसके प्रोसेस को ईजी करता है और फास्टर करता है, बट ये हमें सिखाता नहीं है। ओके, इसकी हेल्प से हम सब कुछ सीखते हैं, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। उससे ईजी हो सकता है, फास्टर हो सकता है। सो इफ़ वी डू नॉट यूज़ द राइट कमांड इन अ कंप्यूटर, अगर आप कंप्यूटर में राइट कमांड प्रोवाइड नहीं करोगे तो क्या होगा, वी मे एंड अप लूजिंग अवर मटीरियल। लाइक इफ़ यू जस्ट क्लिक द डिलीट बटन, देन योर होल मटीरियल विल बी डिलीटेड फ्रॉम योर कंप्यूटर मेमोरी। सो मैं ये कह सकती हूँ कि अगर आपने बाई चांस गलती से डिलीट बटन दबा दिया और आपका मटीरियल हमेशा के लिए आपके सिस्टम से चला जाएगा। सो इट मस्ट बी अवेयर फॉर दैट। Now, we may also end up getting incorrect graphs and data processing if we do not know the correct formula and command. अगर आपको correct formula, correct command नहीं पता है that how to handle the computer technology, then क्या होगा, वो technology आपके लिए useful नहीं होगी। जैसे कि suppose right now everywhere using Zoom, Google Meet, lots of app for the study, but if the students and teachers are not able to understand what function will be performed where, so the particular app will be not beneficiable for them. वो उनके लिए बेनिफिशियबल होगा ही नहीं। अगर उनको प्रॉपर यूज़ करना नहीं आ रहा है तो वो किस तरीके से उनके लिए बेनिफिशियबल होगा। सो वेरी फर्स्ट हमें ये ध्यान रखना है, जब भी हमें कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का यूज़ करना है, वी मस्ट अपडेट अवर सेल्फ। हमें अपने आप को भी अपडेट करना है अकॉर्डिंग टू द कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। नाउ स्टूडेंट्स, द नेक्स्ट वन इज internet technology. This is also very useful in nowadays because the internet providing everything to us. Like वो कहते हैं ना कि ये तो अलादीन का चिराग बन गया है, आपको क्या चाहिए बस आप पूछिए उससे। सो हेयर द डिफरेंट थिंग्स कि हमें इंटरनेट क्या क्या प्रोवाइड करवा रहा है और कैसे हमें वो हेल्प कर रहा है, उसके बारे में हम जानेंगे। वेरी फर्स्ट हम पर्पस देख लेते हैं। First one is tutorials, that right now it is too much useful for you. Like ये टॉपिक अगर मैं कहूँ तो ये आज के लिए आपके लिए सबसे सुटेबल टॉपिक होगा फॉर कोरोना वायरस। जो कोरोना वायरस की वजह से हम जिस तरीके से स्टडी कर रहे हैं, दैट एवरी वेयर द स्टूडेंट्स आर नॉट एबल टू गो टू द स्कूल एंड दे जस्ट स्टडी फ्रॉम देयर होम ओनली। दैट्स वाई द ट्यूटोरियल्स हेल्प अ लॉट टू देम। ओके, उनको बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहा है। अब इसके अंदर क्या क्या होता है, सम एजुकेशनल वेबसाइट्स, हेयर आई एम यूजिंग द वर्ड वेबसाइट। वेबसाइट्स होती हैं एजुकेशनल वेबसाइट्स, पुट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन लाइक मी, जैसे कि मैंने आप लोगों को पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन प्रोवाइड करवाई है। सो ऐसे ही एजुकेशनल वेबसाइट्स पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन प्रोवाइड करवाती है एंड स्टडी मटेरियल अलॉन्ग विद द वर्कशीट्स। उसके अंदर स्टडी मटेरियल भी होता है, वर्कशीट्स भी होती है ऑन द ओपन एक्सेस लिंक। ओपन एक्सेस लिंक का मतलब होता है कि जिसको सभी देख सकें, सभी उसको एक्सेस कर सकते हैं।
ठीक है। तो इस तरह की जो एजुकेशनल वेबसाइट्स होती है ओपन एक्सेस लिंक पे डालती है, जैसे कि मेरा ये वीडियो आपको गूगल यूट्यूब पे जो हमारा ग्रोमोर का चैनल है वहाँ पे ओपनली कोई भी उसे देख सकता है, सुन सकता है। सो दिस इज़ द ओपन एक्सेस लिंक। वी कैन व्यू सच प्रेजेंटेशन एज ए ट्यूटोरियल, लाइक ट्यूशन्स की तरह बोल सकते हैं। आप अपने घर में जब भी आपको ज़रूरत हो तब आप वो वीडियो ऑन कर सकते हैं और देख सकते हैं और सीख सकते हैं। So this is very correct one. And the second one is active learning. Here the word active means right now अगर मैं बात करूँ कि वो क्या करता है, लाइव बात करता है। जैसे कि सपोज दिस इज नॉट द एक्टिव वीडियो, वेन एवर आई एम टेकिंग योर जूम क्लासेस, अगर मैं आपकी जूम क्लासेस लूँ या फिर गूगल मीट पे क्लासेस लूँ, दैट टाइम the thing is active learning because that is the live learning. So some videos of lectures by experts are put on open access site by some educational institutions like the same above, and some institution create live lectures available to the students. Here the word live lecture, आप सभी को ध्यान रखना है, लाइव लेक्चर प्रोवाइड करवाए जाते हैं, जैसे कि एग्जैक्टली क्लासरूम के अंदर टीचर जिस तरीके से पढ़ा रहा होता है उसी तरीके से उनके लाइव लेक्चर्स चल रहे होते हैं, एंड स्टूडेंट्स कैन आस्क द क्वेश्चंस, उनसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। सेम फीलिंग इज लाइक दैट द क्लासरूम। ओके, नाउ live lectures available to the students, and we can register on these sites and we can listen to a lecture on the net like we do in our classroom. एग्जाम्पल है, लेक्चर्स बाय एक्सपर्ट्स आर अवेलेबल इन इकोनॉमिक्स एंड अदर सब्जेक्ट्स। जैसे कि आप लोगों ने लाइव लेक्चर यूट्यूब पे बहुत से देखे होंगे जिसके अंदर लाइव चलता है, टीचर पढ़ा रहा होता है, स्टूडेंट्स अपने घर पे उसको देख सकते हैं और लाइव क्वेश्चंस पूछ सकते हैं अगर उन्हें कोई भी प्रॉब्लम आती हो। तो दैट मीन्स एक्टिव लर्निंग। एक्टिव वर्ड मीन्स लाइव, आप ये चीज़ याद रखना। ट्यूटोरियल मीन्स जो मैंने अभी आपको प्रोवाइड करवाया है, दिस इज़ द फॉर्म ऑफ ट्यूटोरियल। बट अगर मैं आप लोगों का लाइव लेक्चर लेती हूँ तो दैट इज़ एक्टिव लर्निंग। नाउ द थर्ड वन इज़ रीडिंग मटीरियल। रीडिंग मटीरियल मीन्स न्यूमरस बुक्स आर अवेलेबल ऑनलाइन फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर रीडिंग। आप लोगों को ऑनलाइन ईजीली बहुत सी बुक्स अवेलेबल हो जाएगी, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। एंड सम गुड रिसर्च आर्टिकल्स, कॉपी ऑफ जर्नल्स एंड एक्सेट्रा आर ऑल्सो अवेलेबल फॉर रीडिंग। अब आपको बहुत सारे स्टडी मटेरियल्स अवेलेबल हो जाते हैं रीडिंग करने के लिए, एंड सम आर्टिकल्स, बुक्स, जर्नल्स कैन बी एक्सेस्ड बाय पेइंग सम एनुअल फी ऑन दोज वेबसाइट। कहीं कहीं पे फ्री होता है, कहीं कहीं पे पेएबल होता है, तो आप कुछ अमाउंट पे करके भी उनको एक्सेस कर सकते हो। These materials are called e-books, e-journals and etc. So this is the point. E-books क्या होती है? When we reading on particular website और a software form में, जिसको हम कहते हैं सॉफ्ट फॉर्म में जब भी हम कोई मटेरियल पढ़ते हैं तो वो हमारे लिए ई बुक कहलाता है। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज फोर्थ, इंफॉर्मेशन। Information, by really searching, we can get information on universities offering degrees in economics or any other information about any subject. Like अगर आप कुछ सर्च कर रहे हो तो आप इजीली कोई भी इंफॉर्मेशन आपके यूनिवर्सिटी के रिगार्डिंग या आपके स्कूल के रिगार्डिंग या आप जो भी कोई डिग्री, डिप्लोमा जो भी कर रहे हो उसके रिगार्डिंग आपको इंफॉर्मेशन किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड ईजीली मिल जाती है। आप जाइए उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी या पर्टिकुलर स्कूल की वेबसाइट पे, सारी इंफॉर्मेशंस आपको विद इन वन क्लिक अवेलेबल हो जाएगी। नाउ मिससेलेनियस, दैट मीन्स वी कैन गेट कोट्स बाय इकोनॉमिक्स, थॉट्स जिसको हम कहते हैं, नेम्स ऑफ रेफरेंस बुक्स एक्सेट्रा, और ऑल्सो ऑन इंटरनेट बाय यूजिंग द सर्च इंजन। अगर आपको कुछ भी अच्छा स्पेशल थॉट्स चाहिए या कुछ रेफरेंस बुक्स चाहिए तो वो आपको इजीली सर्च इंजन पे, जो कि हम गूगल प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं, तो इट इज़ द फॉर्म ऑफ दिस। ओके, इजीली आपको अवेलेबल हो जाएगा। एंड द लास्ट वन इज़ डेटा। अब डेटा आपको किस फॉर्म में मिलेगा वो हमें देखना है कि इकोनॉमिक्स यूजेस अ लॉट ऑफ सेकेंडरी डेटा। सेकेंडरी मीन्स दैट द डेटा इज़ नॉट क्रिएटेड बाय देम। लाइक अगर गवर्नमेंट ने हमारे यहाँ पे सेंसस करवाया है
और वो डेटा जब हम हमारे पर्टिकुलर यूज़ के लिए फ्रॉम द गवर्नमेंट वेबसाइट एक्सेस करेंगे तो वो सेकेंडरी फॉर्म में आ जाएगा, बिकॉज फर्स्ट उसको किसने यूज़ किया है, गवर्नमेंट ने. सो फॉर द प्राइमरी डेटा फॉर्म गवर्नमेंट उसको यूज़ कर रही है, और जब उसी डेटा को हम लोग उसकी वेबसाइट से एक्सेस करेंगे तो वो हमारे लिए सेकेंडरी डेटा बन जाएगा. फॉर इंस्टेंस we use data on budget of a government, banking, agriculture production, value of export and import, poverty, employment, industrial production, and many other. So there is no need to say much more. These data can be accessed from authentic website. Here the word is authentic, means आपको ये check करना है the particular website is authentic or not. ऑथेंटिक वही होती है जिसको गवर्नमेंट ने ऑथराइजेशन दिया हो, जिसकी प्रामाणिकता सिद्ध होती हो कि ये सही है. बिकॉज इन अवर लाइक इंटरनेट के अगर हम बात करें तो देयर आर लॉट ऑफ फेक वेबसाइट्स. आप लोग सभी जानते हो कि आजकल फेक दुनिया बहुत क्रिएट हो गई है. ये एक तरह का ऐसा बिजनेस बन चुका है, नया चोरी करने का एक तरीका बन चुका है. सो हमें इसके लिए अवेयर रहना है कि वेन एवर वी आर यूजिंग एनी वेबसाइट इट मस्ट बी अ ऑथेंटिक वेबसाइट. फॉर एग्जाम्पल ऑथेंटिक साइट फॉर डेटा ऑन बैंकिंग. अगर आपको बैंकिंग से रिलेटेड डेटा लेना है तो आपके लिए ऑथेंटिक वेबसाइट कौन सी होगी. अब हमें ये पता होना चाहिए कि इंडिया का जो पर्टिकुलर टॉप मोस्ट अपेक्स बैंक है वो है रिजर्व बैंक. तो जो भी डेटा रिजर्व बैंक की जो वेबसाइट होगी वो प्रोवाइड करवाएगी, वो हमारे गवर्नमेंट की बैंक है, तो वो ऑथेंटिक ही होगा. तो हम ये कह सकते हैं कि जब भी हमें बैंकिंग से रिलेटेड डेटा को चेक करना है तो हमारी जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की वेबसाइट है हमें वो चेक करनी चाहिए, वो हमारे लिए ऑथेंटिक होगी. एंड फॉर एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट इट इज़ द वेबसाइट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. तो जो हमारी गवर्नमेंट की वेबसाइट है वो हमारे लिए ऑथेंटिक वेबसाइट होगी फॉर एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट. एंड अगर बात करते हैं बजट की, बजट रिलेटेड इंफॉर्मेशन फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड सो ऑन. So some organization and agencies functioning at national and international level also collect published as well as put data on website. अब मैं अगर बात करूं कि वो लोग क्या करते हैं, अपने वेबसाइट पे डेटा डाल देते हैं जिसके अंदर एग्जाम्पल है CSO, बिफोर हम लोगों ने इन सब के बारे में पढ़ा है, NSSO, WHO, UNO, CMI, ILO, IMF. ये सारी ऑथेंटिक वेबसाइट्स हमें मिलती है क्योंकि ये जो ऑर्गेनाइजेशंस है ये यूनाइटेड स्टेट, हमारी गवर्नमेंट, सो ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म के द्वारा ये दी जाती है. एंड वर्ल्ड बैंक एंड सो ऑन. सो इसके अंदर ऑथेंटिक डेटा के बारे में बताया गया है दैट बाय ऑथेंटिक डेटा इज मीन डेटा विच इज़ पब्लिश्ड बाय recognized research institution after doing comprehensive research. That means आप authentic data उन्हीं को कह सकते हो जो एक recognized research engine आपको बता रहा है particular मैं ये कहूँ कि डिफरेंट टाइप कॉम्प्रहेंसिव सबसे बेस्ट रिजल्ट आपको प्रोवाइड करवा रहा है, तो वो आपके लिए ऑथेंटिक डेटा होगा. नाउ स्टूडेंट, हेयर ऑल्सो क्वेश्चंस इन यूजिंग इंटरनेट फॉर द एजुकेशन. जब आप इंटरनेट का यूज़ कर रहे हैं तब आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है वो भी बहुत ज़रूरी है. बिकॉज इंटरनेट एक ऐसी जगह है जहाँ पे आपके साथ मैक्सिमम चीट हो सकता है. आप चीटेड महसूस कर सकते हैं अगर आपको प्रॉपर नॉलेज नहीं है तो. सो लाइक कंप्यूटर, इंटरनेट इज़ ऑल्सो ओनली अ टूल. जैसे कि मैंने कंप्यूटर की बात करी थी, दैट कंप्यूटर इज़ ओनली अ टूल, वैसे ही इंटरनेट भी हमारे लिए एक टूल ही है. वो हमें स्टडी प्रोवाइड नहीं करवाता है. इट कैन नॉट रिप्लेस बुक्स और टीचर्स. इंटरनेट कभी भी बुक्स को और टीचर्स को रिप्लेस नहीं कर सकता है. और आवर ओन थिंकिंग और रीजनिंग, हमारी खुद की सोच, हमारी खुद की समझ को भी वो क्या रिप्लेस नहीं कर सकता है. हम जो सोचते हैं वो कंप्यूटर नहीं सोच सकता. बिकॉज वी मेक अ कंप्यूटर और इंटरनेट, they doesn't make us. A lot of substandard materials, irrelevant information, misleading information, plagiarized articles are found on the internet. अगर मैं बात करूं कि आप लोगों को तो ये चीज़ के बारे में ऑलरेडी पता होगा कि बहुत सी गलत चीज़ें इंटरनेट पे अवेलेबल होती है. अभी तो ऑनलाइन क्लासेस में भी बहुत सी जगह ऐसे इश्यूज़ फेस करने के लिए मिले हैं. मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन मिलती है, ऐसा करने से ऐसा हो जाता है, वैसा करने से वैसा हो जाता है. सो दीज थिंग्स आर वेरी मच अवेयर अबाउट यू.
आप लोगों को इन सब चीज़ों के बारे में बहुत अच्छे से पता होगा कि इंटरनेट में किस किस तरह की फेक चीज़ें अवेलेबल होती है और आप कैसे उनके साथ चीटेड हो सकते हो। इन बैंकिंग ऑल्सो, लाइक अभी तो आप लोगों को लिंक सेंड किया जाता है, अगर आप उसको जस्ट क्लिक भी कर देंगे तो आपके पूरा बैंक अमाउंट चला जाएगा। वी मस्ट अवॉइड यूजिंग दोज, हमें उनको यूज़ ही नहीं करना है। अनवांटेड जो लिंक्स होते हैं उनको हमें ओपन नहीं करना है, नहीं देखना है। जो हमें हमारे लिए रिलेवेंट लगे, यूज़फुल लगे, सिर्फ उतना ही पर्टिकुलर पोर्शन हमें अटैच करना है, टच करना है, उसके अलावा नहीं। एंड रीडर्स मस्ट हैव द विजडम ऑफ आइडेंटिफाइंग द ऑथेंटिक मटेरियल ऑन इंटरनेट। लाइक रीडर्स के लिए ये स्वतंत्रता है, विजडम है कि वो आइडेंटिफाई करें कि उनके लिए ऑथेंटिक मटेरियल क्या है, क्योंकि वो हमारी समझ पे हम कर सकते हैं, कोई हमें ये बताएगा नहीं। Now only authentic website must be referred to, otherwise you may end up getting mislead। अगर आप authentic websites यूज़ नहीं करोगे तो डेफिनेटली आप मिसलीड हो जाओगे, आप गलत चीज़ें सीख भी लोगे, गलत चीज़ें समझ भी लोगे और हो सकता है कि आपके साथ बहुत कुछ गलत हो भी जाए। सो while you are using internet you must be aware for that। Now the next one is student data CDs, that means compact disk। अब कॉम्पैक्ट डिस्क हमारे लिए कैसे यूज़फुल है इन इकोनॉमिक्स, यहाँ हम ये देखते हैं। सम अथॉरिटीज़ एंड एजेंसीज लाइक लेबॉर्टरीज, रिसर्च सेंटर्स, गवर्नमेंट एजेंसीज एंड एक्सेट्रा, अगर हम बहुत सी ऐसी चीज़ें देखें, अथॉरिटीज़ हैं, एजेंसीज़ हैं, जैसे लेबॉर्ट्रीज़ होती है, रिसर्च सेंटर्स होते हैं, गवर्नमेंट की एजेंसीज़ होती हैं, तो वो क्या इन्वॉल्व करती है? इन्वॉल्व in collection and publication of information and data pertaining to microeconomics indicator, put huge data content in compact disk and sell those for researchers in educational institution. Such CDs are used by educational institutions, research institution and etc for their studies. Some such data CDs frequently used in economics। लाइक जो ऑथेंटिक इंस्टीट्यूट्स होते हैं वो अपने डेटास को सेव करके रखते हैं सीडी में, और जो दूसरे छोटे मोटे इंस्टीट्यूट्स होते हैं जिनको उन डेटास की ज़रूरत होती है, जिस पे वो डिफरेंट टाइप ऑफ चीज़ें सीख सकें, तो उसके लिए वो क्या करते हैं, उनको वो सीडीज़ अवेलेबल करवा देते हैं उनकी डेटा की, क्योंकि वो ओपन लिंक एक्सेस में वो प्रोवाइड नहीं करवा सकते अपने डेटास को। तो अगर आपको पर्टिकुलर ऐसे कोई गवर्नमेंट एजेंसीज़ के डेटा चाहिए, रिसर्च सेंटर के डेटा चाहिए, या फिर डिफरेंट टाइप ऑफ लेबॉर्ट्रीज़ के डेटा चाहिए, तो आपको उनकी सीडीज़ परचेस करनी होती है फॉर डिफरेंट योर पर्पज़, जो भी आपके अलग अलग पर्पस होते हैं उसके लिए। और इकोनॉमिक्स में भी ऐसा ही होता है, जब हम इकोनॉमिक्स में डिफरेंट टाइप ऑफ टॉपिक्स लर्न करते हैं तो हमें वो डेटा आपको वेबसाइट्स पे इतना इजीली अवेलेबल नहीं होंगे, आपको उसके लिए सीडीज़ परचेस करनी पड़ती है। सो सीडी ऑफ नेशनल इनकम अकाउंट्स ऑफ इंडिया, अब ये कभी भी वेबसाइट या ओपन लिंक एक्सेस नहीं होता है, इसकी पर्टिकुलर सीडी आती है, वो पर्टिकुलर सीडी एक्सेस करनी पड़ती है और वो हमारे लिए डेटा फॉर्म में वर्कआउट करती है। देन सीडी ऑफ सेंसस ऑफ इंडिया and CD of Annual Survey of Industrial in India, then CD of NSSO, National Sample Survey Organization, then CD of data pertaining to any ministry in India which are providing by the statistical department of respective ministry। यानी जो भी हमारे गवर्नमेंट के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ मिनिस्ट्रीज़ हैं, उनसे रिलेटेड कोई भी स्टैटिकल डिपार्टमेंट्स हैं, तो वो जो मटेरियल है उसकी सीडीज़ हमें मिलती है। एंड नीचे दिया गया है दैट सम एजेंसीज लाइक CMIE, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, तो उसकी भी एक सीडी आती है, that also create data software which can be purchased only by research institution and corporation as they are very expensive। अब कुछ ऐसी भी सीडीज़ हैं जो इनकी सीडी हैं वो सिर्फ कुछ रिसर्च इंस्टीट्यूट ही परचेस कर सकती है, या कोई बड़े जो कॉरपोरेशन हम बोलते हैं वो लोग ही परचेस कर सकते हैं, क्योंकि वो बहुत एक्सपेंसिव होती है। लाइक आपके और मेरे जैसे लोग उसको परचेस नहीं कर सकते अगर, क्योंकि वो हमारे लिए उतना यूज़फुल नहीं होगा जितना इन लोगों के लिए होगा। सो हम ये कह सकते हैं कि गवर्नमेंट अपने ऑथेंटिक डेटास को भी
डिफरेंट जो नीचे की इंस्टीट्यूशंस होते हैं लाइक कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ एंड डिफरेंट अगर उनको चाहिए तो वो सीडी फॉर्म में अपने डेटा को प्रोवाइड करवाता है, सीडी में देता है, ओपन एक्सेस में नहीं होता है. सो दैट्स वाई हम ये कह सकते हैं कि डेटा सीडी भी हमारे लिए यूज़फुल है क्योंकि उसमें हमें डिफरेंट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन मिलती है. नाउ स्टूडेंट्स, डिफ़िकल्टी इन यूजिंग डेटा सीडी. जब हम डेटा सीडी यूज़ कर रहे हैं तो हमें किस किस तरह की डिफ़िकल्टी आती है वो हम देख लेते हैं. सिंस द डेटा सीडी एंड सॉफ्टवेयर कंटेन ए ह्यूज साइज ऑफ डेटा. अब जो सीडी होती है डेटा की, उसके अंदर बहुत ज़्यादा डेटा होता है, बहुत ज़्यादा. दीज बिकम कॉम्प्लिकेटेड टू यूज़. अब हमें उसको समझ भी नहीं आता कि हम उसको कौन सा पर्टिकुलर डेटा हमें हैंडल करना है, कौन सा नहीं करना है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है. सो देयर आर सेवरल शीट्स इन अ सीडी. बहुत सारी शीट्स होती हैं, जैसे कि आपने एक्सेल में देखा होगा 1 2 3. अब जब आपके फ्रंट पेज पे जो सीट आपको दिखाई देती है, आप सिर्फ उसी को एक्सेस एक बार देख सकते हैं. अगर किसी को ये पता ना हो कि वर्कशीट होती है जिसके अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ शीट्स होती है और अलग अलग शीट्स में डिफरेंट डेटाज प्रोवाइड कराए जाते हैं. एंड वन मोस्ट हैव द नॉलेज रिगार्डिंग सर्चिंग द रिलेवेंट डेटा शीट एंड गेट द रिलेवेंट डेटा. अब अगर आपको एक्सेल की प्रॉपर नॉलेज नहीं है, दैट यू आर नॉट हैंडल द दीज डेटाज, ओके, जो सी डी के अंदर डेटा है तो आप उनको हैंडल नहीं कर सकते हो प्रॉपर वे से. तो फर्स्ट यू मस्ट हैव टू अ प्रॉपर नॉलेज फॉर एक्सेल शीट एंड देन आफ्टर यू आर यूजिंग the data CDs. Okay students, thank you for watching my video because this is my last video, and now students you have to write down your exercise from your textbook, and if you have any query then you message me on my personal number. Okay, thank you so much. Stay home, stay safe from coronavirus. Thank you students. Bye bye.